chill im Block und ich trage Valentino. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Immer noch werd ich verfolgt von der Soko und der Kripo. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Es ist mitten in der Nacht und ich sitze im Casino. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Ständig unter Tatverdacht, augenrot wie ein Albino. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Ich wollte und konnte leider niemals für die Schule lernen. Mein Vater sagte mir, du machst dir deine Zukunft schwer. Hab mit 13 schon geglaubt, dass ich wie Tupac wär. Ein eiskalter Riese wie die U der SSR. Yeah, Geisterfahrer auf der Siegerstraße. Book of Ra, lest die Bücher in der Spieloase. Roll im Lambo Huracan aus der Tiefgarage. Denn Rap und ich gehen Hand in Hand, so wie Liebespaare. In meinem Herzen herrschen Minusgrade. Darum baue ich mir mein Iglo jetzt in Zitrusfarbe. Yamamoto Original und keine China-Ware. Ich lebe in meinem Verlierst deine Kilokarte. Wen willst du rufen, wenn ich komm und deinen Kiefer brech? Du wurdest gefickt von einem Jungen, der von Liebe rappt. Du bist ne kleine Fotze und nicht mein Zeitgenosse. Freitagnacht esse Curryreis mit Haifischflosse. Ich chill im Block und ich trage Valentino. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Immer noch werd ich verfolgt von der Soko und der Kripo. Die Weste weiß wie mein Togo Argentino. Es ist mitten in der Nacht und ich... Hey, hello. Cut. Guys, हम हैं बुराड़ी में अभी. Today we're going to meet someone. काट दूंगा मैं. चलने दे. हाँ भाई, तो सीन ऐसे हैं कि आज हम हैं ब्रूस भाई के साथ. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बाकी बात जो होगी वो सारी मैं सुना ही दूंगा. लेकिन in short, this is going to be a very educative and informative video. Here we go. कैसे हैं आप? All good, brother. आपका ये इंटरेस्ट कैसे जगह मैस्टिफ डॉग्स के ऊपर ना? आपने इतने सारे डॉग्स के ऑप्शंस हैं अवेलेबल मार्केट में. मैस्टिफ डॉग्स ह्यूज होते हैं, इंटिमिडेटिंग होते हैं. इफ यू वांटेड टू हैव अ मैस्टिफ डॉग, तो व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू हैव वन? Yeah, you're right यार, मेरे पास सारे breeds थे. Mastiff dog हमेशा रखना चाहता था. I had many options, but सोच रहा था, but I was waiting for the right time. और this journey starts, way back. मैं बोलूँ तो 4 साल हो चुके हैं. इसी बीच कुछ साल पहले I went to हिमाचल, जो जहाँ पर मेरा एक friend है, so he's in the cafe over. So he has this beautiful dog, Kapar, जो African Mastiff, beautiful dog. So प्रतीक ने ही मुझे explain किया. He's a dog, so it's going to be we had Dogo. मैंने उसको पूछा because I was wanting to keep one Mastiff. क्योंकि सारे breeds मैंने पहले रखे हैं. Doberman, German Shepherd, Rottweilers. Most of the breeds too is that. Mastiff dog. और अगर Mastiff dog की बात की जाए तो there were many Mastiff breeds in India जो मैं ले सकता था. इसमें Neapolitan Mastiff हो गया, French Mastiff हो गया, English Mastiff हो गया. Then he suggested me, why didn't you go for Dog Argentino? तो यही है, उसने मुझे बताया. फिर I went through books, वीडियोस देखी, हिस्ट्री मीडिया चेक किया, लोगों से बात करी, वीडियोस से बात करी. When I got to know that there's a special breed called Dog Argentino. इंडिया में रेयर है. There are some good breeders जो breed करते हैं. पंजाब में हैं, केरला में हैं, हिमाचल में हैं, जो अच्छे breeders हैं. So उनसे पता किया. फिर मेन चैलेंज था कि भाई इंडिया में लूँ किसे, बिकॉज उस टाइम अवेलेबिलिटी जो मतलब जो अच्छे ब्रीडर्स हैं इंडिया में उनके पास नहीं थे. देन आई हैड टू कॉन्टैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड इन टर्की. फिर उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ मैनेज हुआ एंड फिर उनसे बात हुई. इट टुक मी 2 or 3 months टू कम्युनिकेट विद देम, अच्छे से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हुए ईमेल पे. हाउज़ योर एक्सपीरियंस बीन? और डोगो अर्जेंटिनो ही क्यों? मैस्टिफ डॉग्स में भी बहुत ऑप्शंस थे जैसे आपने बताया, तो व्हाई डोगो अर्जेंटिनो? यार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एक्सप्लेन यू कि हिस्ट्री अगर आपको मालूम हो तो विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि डोगो अर्जेंटिनो ब्रीड क्या है. सो 1928 में नोरेस मार्टिनेज ब्रदर्स थे. He was a doctor. दो भाई थे and they wanted to develop a breed जो hunting के लिए best हो.
बिकॉज दो डेज में होता क्या था यार, अर्जेंटीना पूरा फार्मिंग में बेस्ड था और पूरे जो वाइल्ड बोस ग्रुप में आते थे, पैक्स में आते थे, पूरे फार्म खराब करते। सो दे हैड डिफरेंट ब्रीड्स, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो ही थॉट कि कुछ ऐसी ब्रीड बनाई जाए जो हंटिंग के लिए भी बेस्ट हो, जिसका टेम्परमेंट इतना बेस्ट हो कि वो फैमिली के साथ भी रह सके। और उन्होंने कोर्डोबा को एक बेस रखा, उसके बाद उन्होंने उसमें बुलडॉग्स को ऐड किया, उन्होंने बुल टेरियर्स को ऐड किया और मैस्टिफ को भी, जो मैस्टिफ ब्रीड्स थी वो भी ऐड की। तो उसके बाद जो उनके पास डॉग निकला, हंटिंग पर्पसेस के लिए तो ठीक था, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग टर्म हंटिंग की बात आती थी तो उसमें होता क्या है कि जब वाइल्ड बोर दूर चले जाते हैं तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है व्हेन यू वर्किंग इन पैक्स और फोटोज के लिए। तो फिर उन्होंने एक ब्रीड ऐड की जिसका नाम है पॉइंटर, जिससे उसकी जो स्मेलिंग पावर थी वो बहुत इंक्रीज हो। यू नीड टू हैव अ डॉग जो हंट कर रहा है तो वो भी पावरफुल होना चाहिए। तो साइज के लिए उन्होंने ग्रेडियन को लिया, सो व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पावर के लिए उन्होंने मैस्टिफ ब्रीड ली, क्योंकि मैस्टिफ आर नोन फॉर पावर, एंड्योरेंस के लिए। एंड द ग्रेट पेरेनीज प्रोवाइडेड द व्हाइट कोट। जो व्हाइट कोट था वो ग्रेट पेरेनीज आया, उससे विजिबिलिटी अच्छी होती थी डॉग्स की। सो इट टुक सम इयर्स, उन्होंने फाइनली एक ब्रीड बनाया जिनका नाम उन्होंने डोगो अर्जेंटीनो रखा। Were they successful in their purpose? वेरी मच मैन, क्योंकि वो एक ऐसी ब्रीड चाहते थे कि जो मस्कुलर भी हो, जिसका टेम्परमेंट बेस्ट हो, जिसकी मतलब स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टैमिना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब कुछ था डॉग में। मतलब ये लगा लो कि 6 से 7 घंटे आप हंट कर रहे हो, वाइल्ड बोर की हंटिंग कर रहे हो, फिर भी आप नहीं थक रहे हो, यू डोंट गिव अप। दिस टाइप की ब्रीड। Was it easy to get this breed? क्योंकि breeding in India can be difficult for breeds that are imported from outside. और इंडिया में भी तो ऑप्शन थे, अवेलेबल हैं ऑप्शंस यार। देयर आर गुड ब्रीडर्स इन इंडिया, आई वुड से वेरी गुड ब्रीडर्स, जो जिन्होंने अपनी मतलब डोगोस का ब्लड लाइन का ख्याल रखा हुआ है और वो लोग उससे छेड़छाड़ नहीं करते हैं। एंड दे नो अबाउट डोगो अर्जेंटीनो, दे लव डोगो अर्जेंटीनो। उनको डॉग्स बहुत पसंद है। मुझे 3 पपी चाहिए थे, जिसमें एक मेल और 2 फीमेल, और स्पेशली मैंने उनको ये बोल के रखा था कि आई वांट पपीज फ्रॉम द डिफरेंट मदर एंड फादर। सो मतलब ये पर्टिकुलरली कोई कंडीशन यार मतलब सिर्फ मानो मतलब एक ही अगर सिस्टर ब्रदर से हम उनको ब्रीड कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट गुड। ब्रीडिंग लाइन के लिए, ब्रीडिंग के लिए आने वाले उसके टेम्परमेंट के लिए, उसके मतलब हर चीज़ देखा जाता है। तो आप इजीली इनसे मतलब मजाक नहीं कर सकते, कोई भी ब्रीड उठा के और कुछ भी। Why is it so important the bloodline when it comes to choosing a dog? यार when it comes to अल्फा, जो मेरा मेल डॉग है, his father was a champion, उसके फादर के मतलब फादर भी चैम्पियन, मतलब उसके ग्रैंडफादर भी चैम्पियन थे, फादर भी चैम्पियन थे। एंड लेकिन फादर इज नो और ग्रैंडफादर भी पास हो, सो ही इज द ओनली वन एक लास्ट ब्लड लाइन जो बचा है। सो और या लेकिन लकीली अभी अल्फा के बच्चे हुए बहुत प्रिटी। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक? अब तो 1.5 साल के हो गए हैं करीबन आपके साथ। वेल इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी यार। 1.5 साल का एक मेरा मेल है, 2 फीमेल है, जिसमें से जो बीच वाली है उसका अभी फर्स्ट लेटर होगा। स्पीकिंग अबाउट द टेम्परमेंट, कैसे हैं ये घर पे और विद पीपल दैट विजिट, हाउ इज देयर टेम्परमेंट? कितना आपको ट्रेन करना पड़ा? बड़ा क्वेश्चन होता है एक गार्डिंग डॉग के लिए कि उसको मालूम चले कि अगर घर में कोई आ रहा है तो वो इंट्रूडर भी हो सकता है, कोई फेमिलियर बंदा भी हो सकता है जो फैमिली का बंदा हो, या कोई आ रहा है फैमिली रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई भी दोस्त आ रहा है, तो उनको ये सब पता होता है। उनको सिखाने की ज़रूरत है। उनको पता है कौन दोस्त है, कौन गलत पर्पस से आ रहा है, कौन किसकी इंटेंशन गलत है, उनको सब पता लग जाता है, सब कुछ। और इवन इफ दे अटैक ऑल्सो, अगर आपका कमांड अच्छा, आपने उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी है, तो एट द सेम टाइम वो रुक जाएंगे। उनको मालूम है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। दे लुक एट यू
बिफोर दे डू एनीथिंग दे लुक एट यू. मेरा डॉग तो बता कुछ करने से पहले मुझे देखता है कि पूछता है कि चलाएं मैं जाऊँ या ना जाऊँ. दैट्स व्हाट ही डज. तो अल्फा का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको द सेम डेमोन्स्ट्रेट करता हो रिगार्डिंग हिज ट्रेनिंग, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बाहर के डॉग्स के साथ कुछ? यार भी बाहर निकलता है तो ये दो ही लाइक ही इज अ टिप डॉग, लेकिन बाहर जाता है तो ये ऐसा नहीं कि किसी भी डॉग के ऊपर झपटता है या किसी को भौंकता है. ये हार्डली भाग्स आराम से अपना मतलब ही ड्रैग्स भी, मतलब मैं ऐसे नहीं घुमाता, ये मुझे घुमाता है तो मुझे वो लेके जाता है. तो लेकिन हाँ कुछ डॉग्स जैसे दिखते हैं इसके अपनी साइज़ के तो थोड़ा सा वो उसको हो जाता है, लेकिन अगर इस पर कुछ अटैक करे या कुछ करे तो देन यू नो नेक्स्ट लेवल बातचीत भाई. Then talking about their exercise routine, how frequently do you take them out for exercises? Or it's very important for them to exercise because working dogs, hunting dogs अगर तुम्हें जब हिस्ट्री मालूम नहीं है तो आपको मालूम होगा कितनी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है. बट एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 घंटा सुबह, 2 से 3 घंटा शाम को तो बहुत ज़रूरी है. और अगर इनकी फीडिंग की बात करें हम तो कितना क्या रूटीन है फीडिंग का? मैं तो एक मतलब ओल्ड स्कूल वाला खाने का हिसाब रखता हूँ. आई गिव देम एवरीथिंग. मतलब खाने में इनका वेजिस होना बहुत ज़रूरी है. द सेम टाइम मीट ज़रूरी है, चाहे वो चिकन हो चाहे वो रेड मीट हो. लेकिन जब ये ग्रो कर रहे थे 3.5-4 महीने से ऊपर हो गए थे तो आई स्टार्ट गिविंग देम चिकन. एक मील में चिकन में देता था, बॉल चिकन. देन धीरे धीरे देन दे स्टार्ट लाइकिंग, उन्होंने बोन खाना पसंद किया. देन फिर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो है जो बाज़ार में मतलब मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो मुर्गे के पंजे. सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन वाली चीज़ है डॉग के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें फैट भी है, विटामिन डी भी है, मतलब इसमें आयरन भी है. वेरी इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों के साथ कुछ भी दे दो आप उसको राइस दे दो, आप रोटी खिलाओ, रोटी खा सकते हैं. दे लव कर्ड, दे लव मेरे को कुछ भी खिलाओ यार, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते. बट मैंने तो पंजों में रखा, डॉग फूड में रखा, वेजीज में रखा. और टाइम टू टाइम इनको मील दो यार. एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है. टाइम पे इनको बात भी बहुत ज़रूरी है. और वैसे इनको टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी गर्मी हो जितना बड़ी ठंड हो. बिकॉज आई हैव टेकन देम इन माउंटेन्स. 1 डिग्री में भी आराम से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और 47 टेम्परेचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. वंडरफुल डॉग, मतलब हर टेम्परेचर में रह सकते हैं. दे लव वाटर, दे लव हाइकिंग. उनको ऊपर जाना, नीचे जाना, मतलब पेट भरा होना चाहिए भाई, उनको कुछ भी करवा लो. आपके साथ हमेशा कोई ना कोई डॉग रहा ही यार. मैं तो आई हैव फॉलन फॉर देम. छोटी सी बात बोलता हूँ, 365 डेज मैं उनके साथ 24/7. घर वाले कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ कम मिलता है, क्या करूँगा. है तो है भाई. और इफ़ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द डोगो कैनल क्लब ऑफ इंडिया दैट यू आर ट्राइंग टू ओपन, थोड़ा उसके बारे में यस यार. वो आप लोग की वजह से ये स्टार्ट हो रहा है. इसका नाम है जिसमें यू नो सारी इंफॉर्मेशन होती है डोगो के बारे में. बड़ी चैनल का चीज़ें से और स्पेशली डोगो. आई लव अदर ब्रीड्स बट ये मतलब सब्जेक्ट डोगो. what should the audience be awaiting for? But just to start, and I was wanting कि सबके सामने आऊँ and अपने डॉग को दिखाऊँ. स्पेशली फिर मेरा जो एक मकसद है वो लोगों को बताना कि डोगो आर्जेंटिनो ब्रीड क्या है, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, और कैसे बिहेव करते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा खाना पसंद करते हैं, छोटे घर में कैसे रहते हैं या बड़े घर में किस जगह से रहते हैं. आई डू हैव फार्म, लेकिन अभी तो मैं दिल्ली में हूँ घर पे. सो जगह छोटी है फिर भी, और मैंने इनको बड़ा भी छोटे घर में किया. वो आने वाली वीडियोस में हम अपडेट करते रहेंगे. Thank you दादा for this wonderful conversation. Thank you so much. Thank you so much. Peace out. Bye. कुछ like, share, subscribe. Bye bye.